ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨੋਵਾ 755 DI ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਈਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲੀਆ ਖਾਪ 84 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਲੀਆ ਖਾਪ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 4x4 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16x16 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਂਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ट्रैक्टर तो मैं कहना इन्हों कहना ही नहीं चाहिए, टैंक ही है जी ये। देखिए ये ऐसी चीज है कि आप पत्रकार हो, आप इतने ट्रैक्टर खड़े हैं यहाँ, इसकी सिर्फ और सिर्फ विशेषता ये है कि आप सभी ट्रैक्टरों को छोड़ के इसके पास पहुंचने का काम किया आपने। तो ये विशेष ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर मेरा नहीं है, ये हमारे सभी किसान भाइयों का है, एक ताकत का प्रतीक है। और ये जो ट्रैक्टर है ये दिल्ली कूच अगर यहाँ से कोई मूवमेंट करेगा तो सबसे आगे ये ट्रैक्टर होगा। और मेरी पहचान जो है, मैं चौधरी सुनील गुलिया, प्रधान गुलिया खाप 84 और मैं अपने गोत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ चौधरी सुनील गुलिया। इस मूवमेंट में अगर कोई भी यहाँ से कोई आदेश होगा कि हमारे को दिल्ली कूच करना है तो सबसे आगे ये ट्रैक्टर होगा और इसको खुद मैं ड्राइव करूंगा। और ये ट्रैक्टर आप लोगों को किसानों की बहादुरी का प्रतीक महसूस कराने का काम करेगा। चौधरी सुनील गुलिया जी होना दे नाल गलबात जारी रहेगी। सब तो पहला मैं टोनी नूं कहूंगा, जिवें कि सुनील जी ने कहा एक बार आसे पासे ते दिखाया जाए कि यह ट्रैक्टर की है। यह ट्रैक्टर मैनूं लगदा कि शाहरुख खान तो भी बड़ा स्टार है। देखो जी इत्थे तुसीं किसान अंदोलन दे विच एक नवीं जिहड़ी हर एक जिहड़ा एक कदम है, हर एक उपराला है जिहड़ा किसान अंदोलन नूं नवीं एक दिशा दिंदा है, जोश भरदा है, ओनूं जी आयां नूं सलाम है। ऐसे तो ये ट्रैक्टर भी एक जोश भर रहा है किसानां दे विच। बाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। और ये भी है कि बिल्कुल चढ़ती कला दे विचों। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, शाहरुख खान सलमान खान कोई स्टार नहीं है, जीरो है वो बिल्कुल जीरो है। हम उनको जानते ही नहीं कौन है वो। स्टार सिर्फ और सिर्फ किसान है। यहाँ जो भूमिपुत्र यहाँ पहुंचने का जिसने काम किया वही स्टार है। और आज हम सरकार के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं। और ये जो किसान है ये भूमिपुत्र है,
और ये जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, और ये कृषक जो है हमारे भाई यहाँ इकट्ठा हुए यही इस देश को चलाने का काम करते हैं। और सबसे बड़े स्टार जो यहाँ पहुंचने का काम किया ये किसान स्टार है, किसी और स्टार की चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। इस वेले किसान, बिल्कुल बाई जी ने सही किया, इस वेले किसान स्टार है। और ये बहुत खास गल कही है, जे किते भी लोड़ पैंदी है तो अगे लग के ये जान के, और 26 तरीक की कॉल भी है। बिल्कुल बाई जी, एक बार बार ये चीज़ आती है कि किसान इदा नहीं कर सकता, महंगिया चीज़ां नहीं कर सकता, पर मैनूं लगदा कि जेकर 150-150 गज के प्लाट वाला बंदा इन्नी वधिया जिंदगी जींदा तो किसान नूं सब तो वड्डा हक है। किसान तो किल्लियां दा मालक है, तो मेहनती बंदा मेहनत दे नाल बाई जी सब कुछ कर सकता। देखिए हमारी जो वेशभूषा आप देख रहे हो, मैं प्योर किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं। मेरा दादा किसान था, मेरा परदादा किसान था, मेरे परदादा का परदादा किसान था। हमारे को ही किसान बेचारा नहीं है, किसान असली क्रांतिकारी है, और किसान को ही अधिकार है अच्छे कपड़े पहनने का। आप लोगों को मैं अपने माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, ये जो हम कोट और ये पगड़ी और ये जो चीज पहनते हैं हमारे को ही अधिकार है, क्योंकि इस किसान जो है हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बाप दादा परदादाओं ने यहाँ मेहनत करके खून पसीने की जो कमाई जो की है, वो सच्चे मन से सच्चे दिल से रात दिन कमा के जो उन्होंने धन इकट्ठा किया है, उस धन को हमारे को यूज करने का अधिकार है। किसान ना बेचारा है ना गरीब है, किसान सबसे ताकतवर है और किसान को अधिकार है। और मैं तो ये कहूँगा, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा ओढ़ना पहनना सीखो। और जुबान जो है आदमी की सबसे बड़ी ताकत है, बोलना सीखो। आप लोग बोलना सीखो, बोलने की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और बोलने की ताकत को ही हम सरकार को लाने का काम करेंगे। तो किसान को अधिकार है, किसान बेचारा नहीं है, किसान रईस है, किसान सबसे ताकतवर है, और किसान ही इस देश को चलाने का काम करता है। और आज जो किसान के साथ जो क्रूरता की जा रही है, उस किसान उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, और सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा किसान के सामने। किसान एक अकेला नहीं है, किसान के साथ जवान भी है, किसान का ही बेटा है जवान। हमारे यहाँ जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जितनी भी स्टेट लेवल की पुलिस है, जितने भी हमारे देश के अंदर मिलिट्री के आदमी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसान के बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। वो देश की रक्षा करते हैं, और हम देश का पेट पालने का काम करते हैं। किसान सबसे ताकतवर है, किसान कभी निर्बल मत बनो, ताकतवर बनो। आप लोगों की ताकत सबसे बड़ी ताकत है इस देश की। बिल्कुल ये जोश देख सकते हो तुसी, किसानी अंदोलन बिल्कुल सिखरां ते, और जोश बहुत वड्डा है। चौधरी सुनील गुलिया जी साडे नाल ने, लगातार इन्हां दे नाल गलबात कर रहे हैं। बाई जी तुसी जो तुहाडा एक और है जो गलबात करन दा अंदाज है, जो खुद नूं तुसी कैरी कीता होया, ये भी बहुत वधिया एक मैसेज दिता है कि किसान हुण वो किसान नहीं रहा जिवें दियां गल्लां करदियां सरकारां दे वल्लों। ये गल बार-बार कही जाती है कि किसान ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, पर ये एक बहुत वधिया मैसेज जिहड़ा उगा सकदा, दुनिया नूं खवा सकदा। बाई जी वो सब कुछ खा सकदा, जो मर्जी लै सकदा। देखिए किसान का जो जबड़ा है, किसान के जो दांत है, वो सबसे मजबूत होते हैं। किसान सब कुछ खा सकता है, किसान का जो हाजमा है वो सब कुछ हजम कर सकता है। हम तूफानों को रोक सकते हैं, बारूद को खा सकते हैं। किसान के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है, किसान का अधिकार है। किसान सबसे अच्छी चीज खाओ, आप पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, सब कुछ खाओ, बादाम पियो, दंड बैठक मारो, और इस सरकार के साथ लड़ने का काम करो। किसान का अधिकार है। जो भी पदार्थ इस दुनिया के अंदर जो भी पदार्थ बनता है, वो किसान जो इस धरती माता के पेट को चीर के जो पैदा करता है, वो किसान जो है सभी चीजों को खाने का अधिकारी है। ये हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि किसान जो है ये चीज खा सकता है और ये चीज नहीं खा सकता, और दूसरी जो जनता है वो सब कुछ खा सकती है, किसान नहीं खा सकता। ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। किसान का अधिकार है, किसान सब कुछ करने वाला इस देश के अंदर किसान है। या तो इस देश को जो कृषि प्रधान कहते हैं इसको मिटा दो कि ये कृषि प्रधान देश नहीं है, ना तो हम आपको बताते हैं ये जो किसान का कंधा है, हम धरती पुत्र हैं, हमारे कंधों पे ये देश टिका हुआ है। जिस दिन ये कंधे हमने नीचे से निकाल लिए, देश पाताल में चला जाएगा। और हमारे को ये सदा के लिए काम करना है। राष्ट्रहित हमारे लिए सबसे पहला सर्वोपरि है। किसान ने हमेशा अपने बेटों को जवान बना के बॉर्डरों को की सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डरों की मजबूती के लिए भेजा है।
तो हम ये सदैव करते रहेंगे और हमारे को करना है। लेकिन भारत माता के जो चलाने वाले आदमी हैं उनको भी किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये इतिहास के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट ना आज तक हुआ कभी और ना आगे होने वाला है। इस मूवमेंट को आप इतनी मजबूती से चला रहे हो आज किसान भाई, इसको ऐसे ही मजबूती से चलाते रहो। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि एक दिन किसान की जीत होगी और जरूर सरकार इस काम को जो है मानने का काम करेगी और सरकार को हिला दोगे आप लोग। आप बहादुर हो, आप लोगों के बच्चे जवान वहां बॉर्डरों पे बैठे हैं, आप लोग इस जज्बे को जो है ना कायम करके रखो, एक दिन आप लोगों की जीत होगी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਡਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। देखिए, इससे पहले हमने मुकेश अंबानी का SCZ हमारे क्षेत्र में आया हुआ है, उसके साथ मेरा मुकाबला हुआ था। हमने उसको 3 महीने के अंदर धराशायी कर दिया था और उस मूवमेंट को लीड मैं खुद कर रहा था। जो उन्होंने गलत काम किसानों के साथ शुरू किए थे, हमने उसको 3 महीने के अंदर धराशायी करके धरातल पर ले आके छोड़ दिया था। और जो बड़े अधिकारी थे वो अधिकारी वहाँ उन्होंने पहुँचने का काम किया था। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मूवमेंट सभी का है, ये मूवमेंट किसी का नहीं है, ये सभी किसानों का है। ये मत सोचो कौन इस मूवमेंट को चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। इस मूवमेंट को सभी किसानों का हक की लड़ाई है, सभी किसान इसको मूवमेंट को चला रहे हैं। और एक दिन आप शांति प्रिय तरीके से मूवमेंट लंबा चलेगा। जितना लंबा मूवमेंट चलता है उतना ही उसके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें निकल के आपके सामने आएंगी। शांति प्रिय तरीके से मूवमेंट को लंबा चलाओ, एक दिन सरकार झुकने का काम करेगी और आप लोग जरूर कामयाब होगे। ये मैं आप लोगों को सुनिश्चित कराता हूँ। ये मेरी बिल्कुल मेरा अपना जो मेरी एज भले ही छोटी है लेकिन मैंने इस छोटी सी एज में काफी संघर्ष किया है। आप लोगों की विजय प्राप्त होगी। हम फोटो खिंचवाने वाले आदमी नहीं है, हम कभी अखबार में अपना नाम निकलवाने आदमी नहीं है, हम ताकतवर आदमी है। चौधरी सुनील गुड़िया ताकतवर आदमी है, लेकिन हम कभी दिखावा नहीं करते। हम 1 करोड़ रुपए का मशीन लेके आपके पास बैठे, 3 गाड़ियां हैं मेरी, सारा ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है। ये सभी आप लोग जैसे आदेश करोगे हम सबसे पहले दिल्ली कूच करने का काम करेंगे। उसका कारण है आप लोगों को दिल्ली के रास्ते का नहीं पता। लाल किले का रास्ता कौन सी जगह से गुजर के जाता है, हमारे को दिल्ली का पता है। टिकरी बॉर्डर से अगला गांव कौन सा है, टिकरी बॉर्डर से अगला पिंड किथे है सानू पता है, मुंडका है, ओदे आगे लांगलोई है, ओदे आगे पीरागढ़ी है, ओदे आगे मंगोलपुरी है, ओदे आगे प्रीतमपुरा है, ओदे आगे ISBT बस अड्डा है, ओदे बात लाल किला है। असी लाल किला जाने का काम करांगे। असी बहादुर है, गुड़िया खाप बहादुर खाप है। हम बहादुर खाप जो है सबसे आगे चलने का काम करेंगे। आप लोग शांति बना के रखें, एक दिन आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, मैं आप लोगों को सुनिश्चित कराता हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ यूथ आइकॉन ਨੂੰ लीड करते हो तो ਤੁਸੀਂ बहुत एक ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस दिन आया था, एक तो जो समर्थन देने का काम करते हैं वो समर्थन देना छोड़ दो। समर्थन एहसान नहीं कर रहे आप लोग। आप जो समर्थन देने वाले आदमी हो, आप भी किसान हो, एहसान करते हो हमारे ऊपर समर्थन देने का। यहाँ समर्पित होने का काम है, अपने शरीर को समर्पित कर दो। मैं समर्थन देने वालों को खुली चेतावनी देता हूँ, जो आके यहाँ समर्थन देके 2 घंटे के बाद अपने घर कूच करने का काम करते हैं, वो उस काम को छोड़ दो। मैं जिस दिन आया था मैंने उस दिन ऐलान किया था कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये मेरा सामने टेंट है, मैं यहाँ परमानेंट जब तक ये मूवमेंट चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है ये मूवमेंट, इसका नहीं पता है 2 दिन चलेगा, 2 महीने या 2 साल, मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक ये मूवमेंट चलेगा। हमारे सिख भाई वहां से आए हैं पंजाब से, वो वापस पंजाब कूच नहीं कर जाएंगे जब तक मेरा टेंट यहीं लगा मिलेगा। मैंने अपने आप को समर्थन देना बिल्कुल बंद कर दो, और समर्थन जो देता है उसको पकड़ के और पेड़ के बांध दो। समर्थन दे एहसान करता है हमारे ऊपर समर्थन देने का, क्या वो किसान नहीं है? वो भी तो किसान है, आके समर्थन देते हैं और देकर चले जाते हैं, बिल्कुल गलत है। ये मैं बिल्कुल उनको चेतावनी देता हूँ।
ये बिल्कुल गलत है। आप लोग भोले भाले किसान मत रहो, चतुर बनो, शांति से काम करो और समर्थन देने वालों को जो है ना उनको बताओ आप लोग एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। अगर कोई आदमी किसान आदमी आगे यहाँ समर्थन देता है, क्या उसका औचित्य बनता है? समर्थन क्या मतलब है? आप किसान नहीं हो। आज मैं अगर यहाँ समर्थन देता हूँ, पगड़ी बांध के धोती बांध के समर्थन देता हूँ, 2 घंटे के बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, क्या मतलब है उसका? और दिन रात यहाँ रहेगा जो वो किसान है असली। हम जो है कभी भी समर्थन नहीं देते। मैं सिर्फ और सिर्फ समर्पित होता हूँ। मैं आज इस आंदोलन में समर्पित हूँ और आखिरी वाले दिन आप लोग मेरे को देख लेना। जिस दिन आप कामयाब होगा, पंजाब वापस जाओगे, मेरा टेंट यहीं मिलेगा। मैं दिन रात यहीं रहता हूँ और लगातार रहूंगा, चाहे मेरे को 2 साल लगो, चाहे 1 महीना लगो, चाहे 2 महीने लगो, चाहे 2 दिन में आप कामयाब हो, मैं यहीं मिलूंगा। सबसे बड़ा संदेश तो ये है। दूसरा आप सवाल दागो मेरे ऊपर। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, मैं किसानों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ, कभी भी मर के जंग नहीं जीती जा सकती और ना ही भूख हड़ताल से कुछ बनने वाला है। आप लोग बादाम पियो, मक्खन खाओ, घी खाओ, पिज्जा खाओ, जलेबी खाओ, कलाकंद खाओ, ताकत बनाओ। ताकत से लड़ाई जीती जाती है, ना कि भूख हड़ताल से। मत करो भूख हड़ताल, शांति से बैठे रहो आराम से और अपनी बॉडी को ताकतवर बनाओ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मर के कभी जंग नहीं जीती जाती। मरने के बाद तो जंग समाप्त हो जाती है, जिंदा रह के हमारे को जंग जीतनी है। और ये जो सुसाइड जो आदमी कर रहे हैं, इनको हौसला दिलाओ आप कि आप ऐसा काम मत करो। हमारे को जिंदा रह गए, जिस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम उसमें जीत जाते हैं और अपने प्राण खपा देते हैं तो क्या फायदा होगा? हम जिंदा रह के जंग जीतने का काम करेंगे। और कभी भी आदमी निर्बल ना हो, ताकतवर बनाओ अपने आप को और बोलना सीखो। आप लोगों को बोलना कम आता है, बोलना सीखो। सबसे बड़ी ताकत बोलने की है और फिर इनसे लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम अपनी ट्राली के ऊपर अभी तोप लगाने का काम करेंगे। अभी हम इसके ऊपर तोप लगाने का काम करेंगे और उससे एक संदेश देंगे सरकार को। अगर किसी भी सरकार ने हमारे साथ, किसान भाइयों के साथ कभी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो गुड़िया खाप 84 आपके ऊपर तोप से हमला करने का काम करेगी। हमारे पास जवान है, हमारे पास किसान है, हमारे पास पहलवान है, हमारे पास विज्ञान के जो है हमारे पास सभी हैं। और ये हमारे पास हमारे भाई बैठे हैं, जसविंदर जी, ये पंजाब से हैं। ये जिस दिन ये मूवमेंट चालू हुआ था उस दिन ये यहाँ पहुंचे थे। इनके घर में 2 मौतें हो चुकी हैं, इनके घर में 2 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं गए। इनका जज्बा देखो आप लोग। ऐसे आदमियों की जरूरत है हमारे को समर्थन देने वाले आदमियों की कतई जरूरत नहीं है। समर्थन देने वाले आदमियों को पकड़ के और यहाँ बांध दो। जो समर्थन देता है उसी को पकड़ो और यहाँ बांध दो। पेट्रोल पंप पे ले आओ और इसको पकड़ के बांध दो। समर्थन देने वालों को मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों का काम नहीं है? ये मेरा काम है ना, ये आपका भी काम है, आपका भी काम है, आपका भी काम है। आते हैं, 2 गाने गाए, सब वो किया समर्थन और किसान को छोड़ के चले गए। ये नहीं चलेगा। अब यहाँ समर्पित होना पड़ेगा या अपने घर बैठना पड़ेगा। ये मैं खुले शब्दों में आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲੀਆ ਖਾਪ 84 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। पंजाब हरियाणा साझा है और पूरा देश साझा है। और मैं कहूँगा टोनी ने एक बार जी सब तो खास चीज़ है दिखाई जाए। टोनी जेकर तिरंगे के उत्ते जेकर तू कैमरा मारे तो देखो तुसी ये सब तो खूबसूरत तस्वीर है। मैनूं लगदा कि इस तो खूबसूरत तस्वीर किते लभ नहीं सकती। यही तस्वीर है, यही सर्ब सांझीवालता का सुनेहा है। बिल्कुल गलबात की है बाई जी। जे तुसी साडे नाल आओ नीचे आओ तो बहुत वधिया है। और यही तस्वीर है, यही वो तस्वीर है, यही वो खूबसूरत तस्वीर है जिस दे लई भारत जाने जाता है। यही वो तस्वीर है जिन्हें हकूमत नूं भी इस वेले चक्करां दे विच पाया होया, सोचण लई मजबूर कीता होया। ये देखो तुसी, ये जिहड़ा ट्रैक्टर है, ये जिहड़ा टैंक है,
ਟੈਂਕਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੁੱਖੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁੱਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਗਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਜਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਗਰਜੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲੀਆ ਜੀ, ਗੁਲੀਆ 84 ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।